Hello students, I am Assistant Professor Dr. Pallavi Chetan Patil from Sarat College. Here we learn business management. Business management is our subject. Okay, last lecture we understand what is the meaning of management. Just revise all these things. Management is an individual or a group of individuals that accepts responsibility to run एंड ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए मैनेजमेंट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट वन इज दे प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑल essential activities of the organization. I already tell you that planning, organizing, directing and controlling, these words are very important for your management subject. Okay, after that, management does not do the work themselves. मैनेजर अपने आप में कोई काम नहीं करता है वर्कर्स का वगैरह, बट दे मैनेज ऑल द थिंग्स. ओके, द नेक्स्ट वन, दे मोटिवेट अदर्स टू डू द वर्क. वो वर्कर्स को, अपने कलीग्स को, अपने स्टाफ को वो मोटिवेट करते टू अचीव दैट टारगेट, अचीव दैट गोल एंड कोऑर्डिनेट. एक टीम वर्क के जैसा वो काम करते हैं. दैट इज ब्रिंग टुगेदर ऑल द वर्क्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आपका एम है, उसको अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है कौन? मैनेजर. ओनली बिकॉज ऑफ दिस मैनेजमेंट. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज इट इज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग सच अ business environment, a business healthy environment wherein a worker of the organization can work together and achieve business objectives effectively and efficiency. Okay, these words are very important. Effectively, efficiency. In our last lecture we already understand what is the meaning of effectively and efficiency. What is the difference between effective work and efficient work? Okay, and one more thing we learned, that 6 M's. You have to read all these M's with me. What is the first M? Men and women. After that, materials, methods, machinery, machines, and after that, market and money. Men, workers are very important. Material, without raw material it is not possible to achieve our goal. Methods, a proper method is very important to achieve the goal. After that, machinery. Yes, without machinery, how it's possible to work in the factory. After that, market is also very important. आप लोग अपना प्रोडक्ट बेचोगे कहाँ, तो मार्केट होना भी तो जरूरी है. मनी, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल्स, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू learn these 6 M's of the management. Okay, and now the next one is some features of management. Today's topic is features of management. Let's see what is our first feature. Continuous and never ending process. Okay, मैनेजमेंट कभी स्टॉप होता है क्या? एक मैनेजमेंट में एक मैनेजर है. ओके, कंपनी का एक मैनेजर है, उसमें एक मैनेजर है. क्या वो मैनेजर चेंज हो जा सकता है? यस, डेफिनेटली. वी कैन रिक्रूट एनीवन. सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस. ओके, हियर वंस अगेन, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. वो एक प्रोसेस है मैनेजमेंट. Step by step they are doing the managing the things. It includes 4 main functions, that is planning, organizing, directing and control. Once again, these 4 words are here. That's why I'm saying please learn all these 4 words, because without these words your management is incomplete. Okay, now see the next one. For this, it's a continuous, okay, process. The manager has to plan and organize all the activity. सबसे पहला planning होना जरूरी है. Okay, without plan how can we achieve the goal? No, definitely not. So manager has to plan, उसको plan करना चाहिए, and organize all the activity. और जो भी planning किया उसको organize करना है, उसको दिखाना है करके कि बाबा ऐसे ऐसे हो सकता है हमसे. Okay, he had to give proper direction to his subordinate. उसके अंडर, उसके जो सबॉर्डिनेट है, उसका जो स्टाफ है, उसको बताना है, मैनेज करना है कि हाउ कैन दे अचीव देयर गोल बाय स्मार्ट वर्क. ओके, हार्ड वर्क ऑलवेज डूइंग एवरीवन, बट डू हार्ड वर्क विथ अ स्मार्ट वे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सो मैनेजर हैव टू मोटिवेट देम टू do all these things. Next one,
he also has to control all the activity. सिर्फ बोल दिया, कर दिया, मोटिवेट किया, बड़े बड़े लेक्चर्स दे दिए तो हो जाएगा क्या मैनेजमेंट? डेफिनेटली नॉट. तो फर्स्ट प्लानिंग होनी जरूरी है. ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज करना अपने एक्टिविटीज को, वो भी इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दैट डायरेक्शंस दिखाना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द लास्ट वन इज कंट्रोल. वॉट एवर इज देयर, अपने स्टाफ को, अपने एक्टिविटीज को कंट्रोल करना इज द ग्रेट आर्ट ऑफ दैट मैनेजर if you want to really achieve that goal. Okay, so the next one is the manager has to perform these functions continuously. एक टारगेट अचीव हो गया तो स्टॉप हो जाओगे क्या? डेफिनेटली नॉट. These have to do the performance again and again. It means it's a continuous process. Okay, therefore the management is a continuous and never ending process. एक के बाद एक काम बढ़ता जाएगा, एक के बाद एक सब कुछ आता जाएगा. Now see, here is plan, do, check, act. Once again, for the new target, once again, planning, doing, checking, and some activities or controlling that activities is also important. I hope continuous process or never-ending process understand. Okay. Now see the next one, getting things done through people. लोगों से काम करवा के लेना है. सबको पॉसिबल है क्या किसी से भी अपना काम? चलो आपका काम किसी और को या फिर घर वालों को बता के देखो, आपके फ्रेंड को बता के देखो, वो बोलेंगे मुझे क्या मिलेगा. ओके, आपको वो आर्ट होना चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना काम दूसरों से करवा के ले परफेक्टली. दिस इज द वेरी important art for the manager. Okay, so getting things done through the people. Okay, do not do the work themselves. मैनेजर कभी भी अपने आप में काम नहीं करता है. फैक्ट्री का कोई रिपेयरिंग नहीं करता है, कोई भी मोल्डिंग या फिर कोई भी फोल्डिंग का काम वो नहीं करता है. वो सिर्फ क्या करता है? डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोल करता है, वो सारी चीजों को मैनेज करता है, प्लान देता है, मोटिवेट करता है. ओके, ये ऐसा काम करो, वो वैसा काम करो, ऐसा देख के करो, वैसा देख के करो. बट दे आर नॉट डूइंग physical work in the factory, or physical they are not doing any work because they are doing only mental work, sometimes physical also. Okay, the next one is they get the work done through the workers. वो अपने वर्कर से काम डन करवा के लेते हैं. Okay, after that the workers should not be treated like slaves. एक सबसे बहुत बड़ी चीज है, ये काम करो, वो काम करो, ऐसा करो, वैसा करो. मैनेजर जब ऑर्डर देता है तो कोई भी काम नहीं सुनता है. बट मैनेजर अगर मोटिवेट करके, रिक्वेस्ट करके ऑर्डर पास करे तो डेफिनेटली उनके सबऑर्डिनेट को ऐसा नहीं लगेगा कि वो हम लोग सर्वेंट है और वो बॉस है, बॉस ने कह दिया तो हमें करना पड़ेगा. डेफिनेटली नॉट. ओके, तो सबऑर्डिनेटर्स को भी एक इंपॉर्टेंस देना चाहिए, वैल्यूज देनी चाहिए. ओके, द नेक्स्ट वन इज दे शुड नॉट बी ट्रिक्ड और प्रिटेंडेड और फोर्सफुली किसी से काम करवा के लेना. मैनेजर ने कहा ये करना है तो फोर्सफुली काम करवा के लेना है. प्रिटेंडेड इट मींस डरा धमका के, धमकी देके ये करो वरना आपका जॉब चले जाएगा. ऐसे काम कभी भी करवा के नहीं लेना मैनेजर को. ओके, अ फेवरेबल वर्क एनवायरनमेंट, मैंने अभी कहा था द हेल्दी एनवायरनमेंट शुड बी क्रिएटेड एंड मेंटेन. एक दिन हेल्दी एनवायरनमेंट है, एंजॉय किया, देखा, काम किया, आफ्टर द नेक्स्ट डे सेम दैट रूटीन वर्क. No, the favorable environment is very very important because जब भी डेली रूटीन करते तो बोर होता है, बट अगर वो हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करते तो उनको बोर नहीं होगा. ओके, इट मीन्स दिस इज द टास्क ऑफ मैनेजर टू मेक देयर एनवायरनमेंट हेल्दी. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द सेकेंड पॉइंट. नाउ द थर्ड पॉइंट इज रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस एंड आर्ट्स. ऑब्वियसली आई ऑलवेज से ये काम करवा के लेना है, वो काम करवा के लेना है, ये मैनेजर का आर्ट है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? ओके, साइंस मीन्स प्रैक्टिकली काम करवा के लेना, सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बनाना है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर्ट इज देयर इन द मैनेजर टू डू द वर्क और वर्कर से काम करवा के लेना है. सो द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज रिजल्ट ओरिएंटेड बिकॉज it gives a lot of importance to the results. अगर रिजल्ट अचीव करते, अगर आपका एम अचीव होते है तो उस टीम को, उस वर्कर्स को अप्रिशिएट करो. तो रिजल्ट ओरिएंटेड होना जरूरी है. अगर आपका पाथ रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, अगर आपका रास्ता रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, आपका एम ही टारगेट जो दिया है वो अलग जा रहा है,
डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो होंगे ही होंगे. So result oriented is very important. For example of the results like increase of market shares, increase in profit, etc. Manager have to focus on profit or increase the share value in the market. Okay, like this way, management always want to get the best result at all time. Every time manager have to think how can we get the best result, perfect work. Okay. So result oriented is very important. The next one is multidisciplinary in nature. What is the meaning of this? Management has to get the work done through people, right? Manager खुद काम नहीं करता है, management खुद काम नहीं करते. They have to get the work done through their subordinate, through their workers. Okay. The next one is it has to manage people. This is a very difficult job. मैनेज करना, कोई भी बात आपकी क्यों सुनेगा? Why they are you want to become a boss of everyone? No, that's not possible. It has to manage people. मैनेजर को मैनेज करना पड़ेगा पीपल्स को by hook or by crook. This is a very difficult job because different peoples have different emotions. अलग अलग लोगों के अलग अलग इमोशंस है और लेडीज का इमोशन ज्यादा होता है. they are start crying or anything else, that feelings, inspirations, etc. So all these are so much difficult for the manager to handle each and everyone like their own way. Okay. Similarly, the same person may have different emotions at the different times. चलो एक का टारगेट कर दे, ये ऐसे ऐसे होता है एक के साथ, तो सेम थिंग क्या सेकंड टाइम उसके साथ वैसी ही होगी क्या? नहीं. इसका मतलब अलग अलग टाइम पे एक ही इंसान का अलग अलग मूड हो सकता है. तो मैनेजर हैव टू हैंडल ऑल दिस सिचुएशन वेरी केयरफुली, राइट? नेक्स्ट वन इज सो मैनेजमेंट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स जॉब. बहुत डिफिकल्ट. अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? मैनेजर आर नॉट गोइंग टू डू वर्क फिजिकली, दे आर नॉट डूइंग वर्क, दे गेट द वर्क डन थ्रू द पीपल. लोगों से काम करवा के लेते. वो लोग क्या काम करते? मैनेज करना. लोगों को मैनेज करने का काम कौन करते हैं? मैनेजर्स करते. सो दिस जॉब इज वेरी कॉम्प्लेक्स. ओके. देयरफॉर मैनेजमेंट यूज्ड नॉलेज फ्रॉम many different subjects such as economic, information technology, psychology, sociology, etc. All these things have very important for the manager. उसको ये सारी चीजों का ध्यान रख के अपना मैनेज करना है लोगों को. Okay, I hope fourth point is very clear. What is the fourth point? Multidisciplinary in nature. वो अलग अलग टास्क को हैंडल करना चाहिए. कॉम्प्लेक्स है बट you have to handle your subordinates. The next one is a group and not an individual activity. कंपनी का मैनेजर, क्या एक मैनेजर सबको काम कर सकता है क्या? डेफिनेटली नो. इट्स अ ग्रुप. टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट. इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट there is only one person. For in the middle level there is only one person, that is that top level management. Is it possible? Definitely not. So it's a group activity, it's not an individual activity, right? The manager is not an individual activity, it is a group activity. The second one is it used group employees. वो अपने employees को use करता है efforts to achieve the group or owners objective. जो भी target दिया है कंपनी का या फिर जो भी अपने बॉस का टारगेट है उसको अचीव करने के लिए उसको ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, एक का काम नहीं है. Next one, it tries to satisfy the need and wants of the group customers. Okay, अलग अलग लोगों को कस्टमर को वो बुलाता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कंपनी ऑफ सोप. अगर अपनी कंपनी सोप की है, इज इट नेसेसरी हम लोग किसी एक ही कस्टमर को टारगेट करेंगे? नो, वी हैव टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट. दैट्स व्हाई आवर कस्टमर्स आर इन ग्रुप, देन ओनली वी कैन अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट. ओके. So here you can say nowadays importance is given to the team work or team group and not to the individual. तो एक काम करता है तो हमें टेंशन आता है काम कंप्लीट होगा कि नहीं होगा. But if it's in a group then we definitely say हाँ 3-4 लोग हैं काम तो कंप्लीट करेंगे ही, right?
So you can see here record evaluated use working hours